بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وارث چچا کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ آج پھر ملازمین کی سختی آئی ہوئی تھی۔ ہر ہفتے بعد وارث چچا حویلی کے تمام ملازمین کو ایک لائن میں کھڑا کرتے اور پورے ہفتے کے کاموں کا حساب کتاب کرتے۔ چچی آرام سے بیٹھ کر پھل کھا رہی تھیں۔ ملازمین کی ہونے والی بے عزتی سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ خوف زدہ چہروں کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ملازمین ہولے ہولے کام بھی رہے تھے، کیونکہ ان غریب لوگوں کو اس حویلی میں انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وارث چچا، چچی اور ان کی اولادیں حویلی میں کام کرنے والے ملازمین کو اپنی زر خرید غلام سمجھتے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر ملازم کی آج پھر سختی آ گئی تھی۔ اس کی چھوٹی سی غلطی پر وارث چچا نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ تمام ملازم خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اچانک ہی میری کھڑکی کے بالکل قریب آ کر وارث چچا کا بڑا بیٹا عدنان کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر جلدی سے میں نے اپنا رخ پھیر لیا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ انتہائی کمینی مسکراہٹ چہرے پر سجائے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ان چھوٹے چھوٹے ملازموں کے لیے تمہیں اپنے آنسو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے تو یہ ہمارے سروں پر چڑھ کر ناچنے لگتے ہیں۔ انہیں ان کی اوقات میں رکھنے کے لیے یہ سب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عدنان نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نفرت آمیز لہجے سے کہا۔ اپنے والدین کی طرح وہ بھی غریبوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے اسے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ مجھے ہمیشہ اس کی نظروں سے بہت الجھن ہوتی تھی۔ جب بھی میرا اور اس کا آمنا سامنا ہوتا، انتہائی ہوس بھری نظروں سے میری طرف دیکھتا تھا۔ اسی وجہ سے میں اس سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتی، لیکن ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بالکل اس سے کٹ کر رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے چچا اور چچی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اپنی ماں کی تو شکل بھی مجھے یاد نہیں تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ابا نے مجھے بہت محبت سے پالا تھا، یہاں تک کہ سوتیلی ماں کے ظالمانہ رویے کا سوچتے ہوئے انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ لیکن میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 سال پہلے اچانک ہی ابا ایک ٹریفک حادثے میں ہم سے بچھڑ گئے۔ میری تو دنیا ہی اندھیری ہو گئی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ابا کے بغیر زندگی گزارنا پڑے گی۔ ابا اور وارث چچا ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ جب تک ابا زندہ تھے میں نے چچا کے پوشن کی طرف کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ابا کے مرنے کے بعد سے اب مجھے مستقل طور پر اپنی حویلی چھوڑ کر چچا کے ساتھ رہنا پڑ رہا تھا۔ اس حویلی کا وہ حصہ جہاں میں نے اپنے ابا کے ساتھ بچپن گزارا تھا، اسے چھوڑتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اس پر وارث چچا نے مجھے سمجھایا کہ تم کون سا کہیں دور جا رہی ہو، ایک ہی گھر میں رہ رہی ہو۔ ملازموں پر اتنا اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے سر پر تمہیں چھوڑ دیا جائے، اس لیے تمہیں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ میں ان کی نیت سے واقف نہ تھی، اس لیے ان کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ وارث چچا نے دھوکے سے حویلی کا وہ حصہ جس کی ملکیت ابا کے نام تھی وہ بھی اپنے نام کر لیا تھا۔ اس ناانصافی اور دھوکہ دہی پر میں انہیں کچھ نہ کہہ سکی۔ عدنان تو نہ جانے کب کا یہاں سے جا چکا تھا، لیکن اس کی نظروں کا حصار مجھے اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس سے جتنا بھی بچنے کی کوشش کرتی پھر بھی اس سے آمنا سامنا ہو جاتا، اور پھر سارا دن میرا بہت بیزار گزرتا۔ نہ جانے مجھے عدنان سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی تھی۔ شاید وہ مجھے وقتاً فوقتاً ہراساں کرتا رہتا۔ اس کی وجہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے اٹھا دوں، لیکن میں صرف ایسا سوچ ہی سکتی تھی۔ اس پہ عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ چچی کا رویہ بہت عجیب سا تھا۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی بات سے منع نہیں کیا تھا، لیکن کبھی کبھار پیار سے بات بھی نہیں کی تھی۔ میرا وجود ان کے لیے بالکل کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ میں اچھی طرح سے سمجھتی تھی کہ چچی کا رویہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں میرا ان کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس لیے وہ مجھے میری اوقات میں ہی رکھنے کی کوشش کرتی تاکہ میں کبھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کر سکوں۔
चचा की बेटी रूबी मेरी हम उम्र थी और कुछ अरसा पहले तक हमारे दरमियान में अच्छी खासी दोस्ती भी थी, लेकिन अब तो वो मुझे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। मैंने भी उसके बारे में तवज्जो देना छोड़ दी थी। बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन हवेली का बरसों पुराना निज़ाम अभी तक बरकरार था। शाम की अज़ान के फौरन बाद रात का खाना खा लिया जाता था। आज भी खाना खाने के बाद मुलाजमा के साथ कुछ देर तक मैं किचन में काम करती रही और फिर अपने कमरे में आ गई। कमरे की लाइट ऑन की तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि अदनान बहुत पुरसकून तरीके से मेरे बेड के साथ टेक लगाए नीम दराज था और इंतहाई कमीनी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उसकी निगाहों से खुद को बचाने की कोशिश करते हुए मैंने इंतहाई गुस्से से पूछा। मुझे तो इस बात का इल्म तक नहीं था कि अब्बा जान ने ये कमरा तुम्हारे नाम लगा दिया है। इंतहाई संजीदा अंदाज से अदनान ने कहा। मैं जानती थी कि वो मुझे चिढ़ा रहा है। तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाज़त किसने दी थी? बराए मेहरबानी आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे के अंदर दाखिल होना तो दूर की बात है, दरवाजे तक भी मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके तंज को नज़रअंदाज करते हुए मैंने गुस्से से कहा, तुमसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। मुझसे न जाने तुम्हें कौन सी दुश्मनी है। मेरी मोहब्बत भरी बात का जवाब भी इंतहाई नफरत से देती हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने लहजे को इंतहाई दुखी बनाते हुए अदनान ने इंतहाई मासूमियत से कहा। लेकिन मैं जानती थी वो ये सब ड्रामा कर रहा है। मुझे ना ही तुमसे कोई दुश्मनी है और ना ही कोई नफरत, लेकिन तुम अपने काम से काम रखा करो। मेरे बारे में तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंतहाई रूखेपन से मैंने जवाब दिया, तुम खुद को समझती क्या हो? मैं तुम्हें देख लूँगा। गुस्सीली निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने मुझे धमकी दी और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दिया और लंबे लंबे सांस लेकर अपनी बेकाबू होती दिल की धड़कन को काबू करने की कोशिश करने लगी। मुझे अदनान बचपन से ही पसंद न था, लेकिन मैं न जानती थी कि अल्लाह ताला मुझे उसी के घर में लाकर फेंक देंगी। मैं जितना भी उससे बचने की कोशिश करती वो मेरे पीछे पीछे ही फिरता रहता था। बहुत बार मैंने सोचा कि मैं चचा और चची को अदनान की शिकायत लगाऊं। वो मुझे ना सिर्फ हरासा करता है बल्कि मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करने की धमकियां भी देता है। मुझे चची पर हैरत होती थी, जिनके सामने वो मुझे इंतहाई हवस भरी नज़रों से देखता और ज़ुमानी फिक्रे कसता था। लेकिन चची ने ना तो कभी उससे मना किया था और ना ही कभी मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि वो अदनान की इन हरकतों पर तवज्जो देती हैं। यही सोचकर मैंने चचा और चची से कोई बात नहीं की थी। अब्बा की वफ़ात के बाद न सिर्फ हवेली का सब इंतज़ाम बल्कि ज़मीनों और गांव के सब मामलात भी चचा के हाथ आ गए थे। जब तक अब्बा जिंदा थे कोई मसला नहीं था, लेकिन चचा की सख्त गिर तबीयत की वजह से हर शख्स उनसे नाला नजर आता था। लेकिन उनके सामने सर झुकाकर खड़े रहना हर शख्स की मजबूरी थी, क्योंकि वो अपने सामने निगाह उठाने वाले का बहुत बुरा हशर करते थे। जल्द ही उनका रोब व दबदबा सारे गांव पर फैल चुका था। गांव की औरतें हवेली में आती तो मेरे सामने अब्बा का जिक्र जरूर करती, जो गरीबों के हमदर्द और साथी थे। मैं उनके साथ हमदर्दी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। आधी रात का वक्त था। मैं गहरी नींद सो रही थी जब मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। इस वक्त कौन हो सकता है? हैरत से मैंने सोचा। इससे पहले कि मैं उठकर दरवाज़ा खोलती, अदनान की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो। अदनान की आवाज़ सुनते ही खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी बड़ी जुर्रत भी कर सकता है। आधी रात के वक्त मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है और बगैर किसी खौफ के दरवाज़ा खोलने का हुक्म दे रहा है। खौफ के मारे मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था। न जाने वो कितनी देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा। इंतहाई सर्द और धीमे लहजे से मुझे दरवाज़ा खोलने का कह रहा था। उसकी आवाज़ धीमी थी। शायद वो भी कोशिश कर रहा था कि कोई और उसकी आवाज़ ना सुन सके। न जाने कितनी देर तक वो दरवाजे पर खड़ा रहा और फिर मायूस होकर लौट गया। मैंने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था
کہ وہ ایسی जुर्रत भी कर सकता है। लेकिन अब पानी सर से ऊंचा हो गया था। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि चचा और चची से अदनान के बारे में ज़रूर बात करूँगी। मुझे यकीन था कि चचा उसे समझाएंगे। सुबह नाश्ता करते हुए अदनान इंतहाई खुशीली और नफरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था, जबकि मैंने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। मेरे दिल में उसके लिए पहले भी कोई मोहब्बत न थी, लेकिन अब नफरत बहुत बढ़ चुकी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उसकी हवस भरी आंखें नोच डालूं। मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि मेरे लिए आसानियां पैदा कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ था मैं नहीं जानती थी। साथ वाले गांव के चौधरी साहब ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए भेजा तो चचा ने जल्दी से इनकार कर दिया, जबकि चची तो बहुत खुश थी कि मुझसे जान छूट जाती। चचा के इनकार करने पर वो नाराज़ हो गई थी, जिस पर चचा ने उन्हें समझाया कि अगर वो मेरी शादी खानदान से बाहर कर देती हैं तो मेरे हिस्से की सब ज़मीन भी देनी पड़ेगी। ये सुनकर चची भी खामोश हो गई थी, लेकिन चची ने साफ अल्फाज में चचा से कह दिया था कि वो मुझे कभी अपनी बहू नहीं बनाएंगी। मैं खुद भी यही चाहती थी कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ, जहाँ पर मैं सुकून से ज़िंदगी गुजार सकूँ। चची की बात सुनकर चचा ने दुख और हैरत का इजहार किया। खुदा जानता है तुम्हें कब अकल आएगी। तुम्हारे आवारा और बदमाश बेटों को इलाके में से कोई भी अपनी बेटियों का रिश्ता नहीं देगा। मजबूर और बेबस लड़की है, आगे पीछे कोई नहीं है। जैसे भी हालात होंगे उसे गुजारा करना पड़ेगा। हमारी एहसानमंद रहेगी, और तुम हो कि कह रही हो कि उसे अपनी बहू नहीं बनाना। चचा ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन चची इस बात के लिए हरगिज़ भी राजी नहीं थी कि उनके दोनों बेटों में से किसी के साथ भी मेरी शादी हो जाए। मैं खुद भी यही चाहती थी, क्योंकि अदनान और उसामा दोनों ही मुझे सख्त नापसंद थे। जब चचा ने अदनान से मेरी शादी की बात की तो उसने भी अपनी माँ की तरह इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसामा भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी और मुझे इनकार की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। एक बात पर मुझे हैरत होती थी कि अदनान हर वक्त मुझ पर निगाह जमाए बैठा रहता, फिर भी उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया था। अदनान के दोस्त की शादी थी, इसलिए वो आज रात के खाने पर मौजूद नहीं था। उसकी गैर मौजूदगी से मुझे बहुत इत्मीनान हासिल हो रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये इत्मीनान तो रेत की दीवार साबित होगा। रात गई जब अदनान शराब के नशे में मस्त घर में दाखिल हुआ तो मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया था। उस दिन के बाद मैं बहुत मोहतात हो गई थी। कमरे के दरवाजे के सामने एक बड़ा सा लकड़ी का मेज रख देती, ताकि अगर कभी अदनान दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करे तो भी कामयाब ना हो सके। नशे में मस्त होकर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहा था और साथ ही साथ मुझे धमकी देते हुए कह रहा था कि मैं दरवाज़ा खोल दूं, वरना वो मुझे जान से मार देगा। इस सूरत हाल पर मैं बहुत घबरा गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से वो लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर गया और फिर किसी मुलाजिम ने उसका बेहोश वजूद उठाकर उसके कमरे तक पहुंचा दिया था। मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी कि बहुत जल्द मुझे ये ठिकाना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अदनान की दस्तराजियाँ बढ़ती ही जा रही थीं। चची सब कुछ देखते हुए भी अनजान बनी बैठी रहती। चची जानबूझकर अदनान को नज़रअंदाज करती थी, लेकिन अब वो हद से बढ़ चुका था। इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने चची से अदनान की शिकायत लगाई तो वो शदीद गुस्से में आकर मुझे ही बुरा भला और बदकिरदार कहने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे ऐसा कहेंगी। सब कुछ उनके सामने हो रहा था, लेकिन वो अपने बेटे को तो मासूम और फरिश्ता समझती थी और मुझे बदकिरदार कह रही थी। अपने लिए बदकिरदार का इल्ज़ाम सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं चचा और चची के साथ नहीं रहूंगी, बल्कि हवेली के दूसरे हिस्से में, जो कि मेरे अब्बा के नाम पर था, उसमें रहूंगी, जहां मैंने अपना सारा बचपन गुजारा था। लेकिन अब उस हिस्से में मुझे जाने की इजाज़त भी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो अदनान और उसामा के इस्तेमाल में था। उस हिस्से में अदनान और उसामा अपने दोस्तों को मदऊ करते और रात गई तक खाने पीने का इंतज़ाम और ताश खेलते जाते थे। इब्तिदा में मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की,
लेकिन मेरी किसी बात को दोनों भाइयों ने कोई अहमियत नहीं दी थी। दोपहर का वक्त था, मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी जब अचानक ही दरवाज़ा खोलकर अदनान अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही मैं घबराकर उठ बैठी थी और अपनी चादर फैलाकर अपने इर्द गिर्द रख ली। तुम क्या समझती हो कि तुम बहुत बहादुर हो, मेरा मुकाबला कर सकती हो? कमरे में दाखिल होते ही अदनान ने इंतहाई गुस्से से पूछा। मैंने तुमसे कब कहा है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मुकाबला करना चाहती हूँ? अपने आप को पुरइत्माद जाहिर करने के लिए मैंने इंतहाई गुस्से से कहा, लेकिन मेरा दिल खौफ से बहुत तेज तेज धड़क रहा था। कब तक मेरी बात नहीं मानोगी? आखिर एक दिन तुम्हें मेरी हर बात मानना पड़ेगी। तुमने अम्मा को मेरी शिकायत लगाई है, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, धमकी देते हुए अदनान ने कहा, और जिस तरह गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था इसी तरह बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने आंखें बंद करते हुए शुक्र अदा किया। न जाने उसे देखते ही क्यों मैं खौफ से बेकाबू होने लगी थी। मैं जानती थी कि उसने जो कुछ कहा है वो उस पर अमल करने की कोशिश भी करेगा। एक बात का तो मुझे इल्म हो चुका था कि चच्ची अदनान को कभी भी किसी बात से मना नहीं करेंगी और उसकी हर गलती का इल्ज़ाम मेरे सर पर लगा देंगी। उस रोज़ के बाद से मैं ज़्यादा मोहतात रहने लगी थी। आधी रात का वक्त था जब खटके की आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। कमरे में छोटा बल्ब ऑन था, इसलिए सब कुछ वाज़ेह दिखाई दे रहा था। आवाज़ किस तरफ से आई थी कुछ पता नहीं चल रहा था। खौफज़दा निगाहों से मैं इधर उधर देखने लगी। एक बार फिर आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ की सिमत में मैंने देखा तो हैरत और खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। खौफ के मारे मेरे चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए, क्योंकि मेरे कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की जा रही थी। चाबी घुमाने की आवाज़ पर शायद मेरी आंख खुली थी। कोई बहुत एहतियात से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। आज तो मुझे अपना आप बचाना बहुत मुश्किल लग रहा था। अपनी बेबसी पर मुझे रोना आ रहा था, लेकिन उस वक्त रोने की बजाय अकल से काम लेने की ज़रूरत थी। खुद को एक बड़ी सी चादर में छुपाकर मैंने जूते पहने और एक नज़र अपने कमरे पर डाली। कमरे की वाहिद खिड़की जो कि घर की पिछली तरफ खुलती थी, जिसका शीशा भी टूटा हुआ था। पुराने तर्ज की बनी हुई उस खिड़की में एक इंसान के बाहर निकलने की गुंजाइश थी। कुछ भी सोचे बगैर मैंने अल्लाह का नाम लिया और खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। अचानक से ज़मीन पर गिरने की वजह से मेरी दोनों टांगों पर शदीद चोट आई थी, लेकिन उस वक्त मुझे अपनी इज्जत बचाने की फिक्र थी, इसलिए अंधाधुंध भागने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे कमरे का ऑटोमेटिक लॉक अब तक टूट चुका होगा। मेरे पास वक्त बहुत कम था। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इस हवेली से बाहर निकल जाना चाहिए था। हवेली की ऊंची दीवार को क्रॉस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन खुदा का शुक्र था कि इस मुश्किल वक्त में मेरा दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा था। इस अंधेरे में एक दरख्त के तने पर चढ़ते हुए मैं हवेली की दीवार पर चढ़ गई और फिर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। अचानक ज़मीन पर गिरने की वजह से बहुत देर तक तो मैं अपनी टांगों पर खड़ी ही नहीं हो सकी थी, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं हिम्मत जमा करते हुए खड़ी हुई और एक सिमत तोड़ने लगी। मैं जानती थी कि अदनान ने सारी हवेली में मेरे घर से भाग जाने का शोर डाल दिया होगा और अब चचा मुलाजमों के साथ मिलकर पूरे गांव में मेरी तलाश शुरू कर देंगे। मुझे किसी महफूज मकाम की तलाश थी। रात के अंधेरे में कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं भागकर किस तरफ जा रही हूँ। गांव की अकलौती मस्जिद का दरवाज़ा देखकर मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए और मैं फिर इधर उधर देखते हुए मस्जिद के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और मुझे खौफ भी महसूस हो रहा था। उस मस्जिद के बारे में बहुत सी बातें मशहूर थीं। यहाँ के लोग कहते थे कि इस मस्जिद में जिन्नात भी नमाज अदा करते हैं। यहाँ तक कि अगर मौलवी साहब मौजूद ना हो तो जिन्नात की तरफ से आज़ान भी दी जाती है। रात के वक्त अक्सर लोग अपने बच्चों को इस मस्जिद की तरफ नहीं आने देते थे, क्योंकि बाज़ बच्चों के डर जाने के वाक़यात भी मशहूर थे। मुझे इस वक्त मस्जिद से ज़्यादा महफूज मकाम कोई भी महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए मस्जिद के कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। मेरा दिल खौफ से बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि कानों के रास्ते बाहर निकल आएगा। बहुत खामोशी के साथ मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई।
चचा और चची के रवैये के बारे में सोचने लगी। वो दोनों खुद भी साहिब औलाद थे, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह ताला ने मेरे लिए रहम नहीं डाला था, बल्कि मैं तो कहती थी कि मोहर लगाती थी, इसलिए उन्हें किसी पर रहम नहीं आता था। जब मैंने चचा से अपनी हवेली में वापस जाने की बात की तो चचा ने मुझे बहुत बुरा भला कहा और साफ अल्फाज में कह दिया कि अब इस हवेली के मालिक वो खुद हैं, क्योंकि अब्बा के मरने के बाद से वो मेरा हर तरह का ख्याल रख रहे थे, मेरी हर ज़रूरत पूरी कर रहे थे। इसलिए बदले के तौर पर उन्होंने वो हवेली रख ली थी। जबकि मैं उनसे ये पूछना चाहती थी कि मेरे अब्बा की वो ज़मीनें जिनकी फसलें बेचकर बेशुमार रकम जमा कर चुके हैं, उसका क्या हिसाब होगा, लेकिन खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। अपने हालात के बारे में सोचते हुए मैं मुसलसल रो रही थी। मुसलसल रोने की वजह से दिल कुछ हल्का हो गया था, लेकिन अब मुझे अपने आसपास से खौफ महसूस होने लगा। अचानक ही मुझे मस्जिद के बाहर से बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल की धड़कन ही बंद हो जाएगी। मुझे यकीन था कि बहुत जल्द ही अदनान या चचा के मुलाजिम मुझे तलाश कर लेंगे। मुझे आंखों के आगे अंधेरा महसूस होने लगा। मस्जिद के कमरे में घड़ी लगी हुई थी, जिस पर दिखाई देने वाले वक्त के मुताबिक अभी फजर की अज़ान में बहुत वक्त बाकी था। इसलिए मुझे इस बात का यकीन था कि मस्जिद से बाहर मौलवी साहब या कोई नमाजी नहीं, बल्कि मेरी ही तलाश की जा रही है। किसी खसा रसीदा पत्ते की तरह मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। अल्लाह ताला के घर में सजदे में सर रखकर मैं अल्लाह से मदद मांगने लगी। अल्लाह के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। बहुत देर तक सजदे में गिरकर मैं अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत की दुआ मांग रही थी। एकदम से मेरे दिल में सुकून भर गया था। अल्लाह के सामने अपने सब मसले रखने के बाद मैं बहुत हद तक पुरसकून हो गई थी। मुझे अल्लाह ताला पर यकीन था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। बाहर से बातों की आवाज़ें आना बंद हो गई थी, जिस पर मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि वो मेरे तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि मैंने मस्जिद में पनाह ली है। अपनी इज्जत के बच जाने पर मैं जितना भी शुक्र अदा करती कम था, इसलिए मैं बार बार सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी और उसका फजलो करम मांग रही थी। इबादत से फारिग होकर मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई और आने वाले हालात के बारे में सोचने लगी। एक बात का तो मुझे इल्म था कि सुबह तक सारे इलाके में ये खबर फैल चुकी होगी कि मैं रात के अंधेरे में अपने घर से भाग गई हूँ। लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होंगे। हर कोई यही समझेगा कि मैं किसी लड़के के साथ घर से भाग गई हूँ। चची और अदनान तो हर बात बढ़ा चढ़ाकर बता रही होंगी। इसलिए अब गांव या हवेली वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन मैं कहाँ जा सकती हूँ? इस भरी दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हुए न जाने कब मैं नींद में खो गई। जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मस्जिद के इस कमरे में मैं अकेली नहीं बल्कि कोई और भी मौजूद है। खौफज़दा निगाहों से इधर उधर देखने लगी, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक और फिक्र मुझे सताने लगी थी कि फजर की नमाज का वक्त हो रहा है और मुझे यकीन था कि कुछ ही देर में मौलवी साहब आते होंगे। अजान की आवाज़ सुनने के बाद नमाजी भी मस्जिद की तरफ चल पड़ेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अल्लाह ताला के घर में आकर मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था और मैं खुद को महफूज भी समझ रही थी। लेकिन अब ये ठिकाना भी मुझे छोड़ना पड़ रहा था। अगर कोई शख्स भी मुझे देख लेता तो ये खबर हवेली तक पहुंच जाती। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी, इसलिए उठकर खड़ी हो गई। किसी शख्स के भी आने से पहले मैं यहाँ से निकल जाना चाहती थी। रुक जाओ लड़की, इस अंधेरे में कहाँ जा रही हो? अचानक ही एक मजबूत मर्दाना आवाज़ सुनाई थी तो मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। जल्दी से गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो एक नौजवान बिल्कुल मेरी मुखालिफ सिमत में मस्जिद के कोने में बैठा हुआ था। अचानक से एक नौजवान लड़के को देखकर मुझ पर खौफ तारी हो गया था और मैं खौफ से लरसने लगी। तुम कौन हो और रात के इस पहर में यहाँ मस्जिद में क्या कर रही थी? उस नौजवान ने मेरी तरफ देखते हुए संजीदगी से पूछा। मैं उसकी तरफ हैरत से देख रही थी क्योंकि वो बहुत अजीब लिबास में मलबूस था। मैंने कभी किसी शख्स को ऐसे लिबास में मलबूस नहीं देखा था।
इंतहाई रंगीन और ढीला ढाला लिबास था। शायद पुराने ज़मानों में लोग ऐसे ही लिबास पहनते हों। उसके अजीब व गरीब लिबास की तरफ देखते हुए मैंने दिल ही दिल में सोचा, मैंने तुमसे पूछा है कि तुम कौन हो और मस्जिद में क्या कर रही थी। मेरी तरफ से जवाब ना पाकर उसने एक बार फिर पूछा। वो मैं मस्जिद में छुप गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उससे मैं क्या जवाब दूं। टूटे फूटे अल्फाज में मैंने जवाब दिया, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें मस्जिद में क्यों आना पड़ा, किससे छुप रही थी। सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखते हुए उसने पूछा। इससे पहले कि मैं उससे कोई जवाब देती, इंतहाई गुस्सीली निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। शायद तुम रात के अंधेरे में घर से भाग रही थी और जिस शख्स के साथ तुम भाग रही थी वो नहीं आया होगा और अब तुम्हारे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मस्जिद में पनाह ले ली है। उस अजनबी नौजवान के इल्ज़ाम लगाने पर मैं तड़प कर रह गई, इसलिए जल्दी से कहा, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। मैं भला क्यों किसी लड़के के साथ घर से भागूंगी। मैं तो अपनी इज्जत बचाकर घर से भागी थी, क्योंकि मैं तो अपने घर के अंदर भी महफूज नहीं थी। इंतहाई दुख और बेबस लहजे से मैंने कहा। उसे अपने अल्फाज की सख्ती का अंदाजा हो गया था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के असरात दिखाई देने लगे। मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, तुम अपने घर में क्यों गैर महफूज थी? हैरत का इजहार करते हुए उसने पूछा। मुख्तसर लफ्ज़ों में मैंने उसे अदनान के बारे में बता दिया। तुमने बहुत अच्छा किया, वो हवेली छोड़ दी, वो तुम्हारे लिए महफूज पनाहगाह नहीं थी। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, लेकिन अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे इसका इल्म नहीं है। बेबसी से मैंने कहा। मस्जिद का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो खौफ और हैरत से मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। अगर मैं मस्जिद में अकेली होती तो कह सकती थी कि मैं अदनान के खौफ से भागकर मस्जिद में छुप गई, लेकिन अब मैं मस्जिद में अकेली नहीं थी। मैं कुछ भी कहती रहती, किसी ने भी हमारी बात पर यकीन नहीं करना था। लेकिन मेरे बरक्स वो नौजवान बहुत इत्मीनान से खड़ा था। तुम डरो मत, कुछ भी नहीं होने लगा। हाथ के इशारे से उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन मैं जानती थी कि मौलवी साहब कमरे में दाखिल हुए तो हमें एक साथ देकर न जाने क्या सोचेंगे। अचानक ही उस नौजवान ने हाथ बुलंद किया तो उसके हाथ में एक काले रंग की चादर आ गई। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। उस चादर को ओढ़कर तुम एक कोने में बैठ जाओ। ये मखसूस चादर है, इसे जो भी ओढ़ लेता है वो फिर किसी को दिखाई नहीं देता। तुम बिल्कुल महफूज रहोगी, किसी को भी तुम्हारी मौजूदगी का इल्म नहीं होगा। चादर मेरी तरफ बढ़ाते हुए उस नौजवान ने कहा। मैंने जल्दी से उसके हाथ से चादर ले ली और अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेटकर मस्जिद के एक कोने में बैठ गई। मैंने ऐसे कोने का इंतखाब किया था जिस पर मुझे यकीन था कि इस तरफ कोई शख्स नहीं होगा। मौलवी साहब मस्जिद के कमरे में दाखिल हुए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। जब मौलवी साहब को मैंने देखा तो वो अपने कामों में मसरूफ थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके अलावा कमरे में कोई और भी मौजूद है। यहाँ तक कि उन्हें उस नौजवान की मौजूदगी का एहसास भी नहीं हो रहा था। मौलवी साहब ने आज़ान दी और उसके बाद नमाजियों का इंतज़ार करने के लिए कमरे से बाहर चले गए। बाहर से बातों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। शायद नमाजी आना शुरू हो गए थे। कुछ देर बाद मौलवी साहब कमरे के अंदर दाखिल हुए तो कुछ और लोग भी उनके साथ थे। बाजमात नमाज अदा की गई। मुझे किसी ने भी नहीं देखा था, लेकिन एक नमाजी ने नमाज पढ़ने के बाद बाकी लोगों को बताया कि चौधरी वारिस की भतीजी रात के अंधेरे में घर से भाग गई है। चौधरी वारिस और उसका बेटा अपने पालतू कुत्तों के जरिए उस लड़की को रात भर तलाश करते रहे हैं। अपने बारे में लोगों की बातें सुनकर ना चाहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। कोई कहता कि उस लड़की ने बहुत अच्छा किया, वारिस चौधरी के जुल्म से तंग आकर भाग गई होगी। लेकिन ज्यादातर का यही ख्याल था कि मैं किसी नौजवान लड़के के साथ घर से भाग गई हूँ। आहिस्ता आहिस्ता नमाजी वापस चले गए, यहाँ तक कि मौलवी साहब भी मस्जिद का दरवाज़ा बंद करके जा चुके थे। इस दौरान मैंने उस नौजवान पर नज़र रखी हुई थी। नमाज अदा करने के बाद वो किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, बल्कि एक कोने में खामोशी से कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। कुछ देर बाद उसने कुरान पाक बंद किया, हाथ उठाकर दुआ मांगने के बाद
कुरान पाक को मखसूस जगह पर रख दिया और मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। अब तुमने क्या सोचा है कि तुम क्या करोगी? मेरी तरफ देखते हुए उसने पूछा। मुझे कुछ इल्म नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। ला इल्मी का इजहार करते हुए मैंने जवाब दिया, एक बात का तो तुम्हें इल्म हो ही गया है कि तुम्हारे बारे में सब क्या सोच रहे हैं, इसलिए अगर तुम इस वक्त अपने घर वापस भी जाती तो तुम्हें कबूल नहीं किया जाएगा बल्कि कसूरवार समझा जाएगा। बेहतर है कि तुम मेरे साथ चलो, जब हालात ठीक हो जाएं तो वापस चली आना। उसने मशवरा देते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। अगर मैं तुम पर एतबार कर लूं और तुम भी मुझे धोखा दे दो तो फिर मैं क्या करूंगी? उसकी तरफ देखते हुए इंतहाई मायूसाना लहजे से मैंने कहा था, मेरा नाम शहजादा मुकर्रब है। अगर तुम मुझ पर यकीन करती हो तो फिर मेरे साथ चली आओ, मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अपना नाम बताते हुए उसने कहा था, तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? इंतहाई खौफजदा लहजे से मैंने उससे पूछा। उस वक्त तो मैं तुम्हें अपने घर ही लेकर जा सकता हूँ, जहाँ पर मेरा सारा खानदान रहता है। उस घर में मैं अकेला नहीं रहता। उसने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। ये जानकर वो मुझे अपने घर लेकर जाएगा, मैंने उसके साथ जाने की हामी भर ली थी। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो कौन था और कहाँ रहता था, मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी। उस वक्त तो मेरी हैरत की कोई इंतहा ही न रही जब वो गांव की तरफ जाने की बजाय जंगल की तरफ चल पड़ा। कि तुम किस तरफ जा रही हो? तुम्हारा घर किधर है? अपने कदम रोकते हुए मैंने उससे पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ, मेरा घर इसी तरफ जंगल में है। पीछे मुड़कर देखते हुए उसने जवाब दिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। मुझे उससे खौफ महसूस होने लगा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम जंगल में कैसे रह सकते हो? खौफजदा लहजे से मैंने कहा था। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझ पर यकीन रखो। मेरे खौफ को महसूस करते हुए उसने तसल्ली देने की कोशिश की। चंद कदम पीछे चलकर वो बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। अचानक ही उसने एक ऐसी हरकत की जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। अपना हाथ उठाकर जल्दी से उसने मेरे सर पर रख दिया और फिर मुझे कुछ खबर नहीं कि क्या हुआ। अचानक ही सब मंजर बदल गया था। चंद लम्हे पहले तो मैं मस्जिद के करीब खड़ी थी, लेकिन अब यहाँ पर मस्जिद का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि ये तो एक ऐसा इलाका था जो आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। पहाड़ दिखाई दे रही थी, लेकिन बहुत फासले पर थे। जिस जगह पर हम खड़े थे दूर दूर तक हरियाली और मैदान दिखाई दे रहे थे। हर तरफ बड़े बड़े मकानात बने हुए थे। एक बात जो सबसे हैरत अंगेज थी, इधर उधर मर्द और औरतें काम करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये औरतें और मर्द बहुत अजीब और गरीब जिसामत के मालिक थे। कोई बहुत लंबा और काला था, किसी के हाथ पांव बहुत लंबे लंबे और किसी के दांत बहुत लंबे थे। गर्ज ये कि हर कोई अजीब शक्ल सूरत वाला था। ऐसी खौफनाक शक्ल के लोग देखकर तो मैं बहुत डर गई और खौफज़दा निगाहों से शहजादा मुकर्रब की तरफ देखने लगी। तुम्हें एक बात जानकर बहुत हैरत होगी, शायद डर भी जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही परेशान होने की। शहजादा मुकर्रब ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। जवाब देने के बजाय मैं हैरत और खौफ से उसकी तरफ देखती रही। तुम्हें हम सब बहुत अजीबोगरीब दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हम तुम्हारी तरह इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं, और इस वक्त तुम जिन्नात के इलाके में आई हो। शहजादा मुकर्रब ने मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाया था। ये जानकर कि मैं इस वक्त जिन्नात के दरमियान हूँ, मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। अपनी टांगों पर खड़ा रहना अभी मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। ये जिन्नात तो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे या मुझे जला देंगे। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इंतहाई खौफज़दा लहजे से मैंने कहा। मेरी बात सुनकर शहजादा मुकर्रब मुस्कुराने लगा। मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम मेरी मेहमान हो, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए कोई अच्छा फैसला करूंगा। शहजादा मुकर्रब मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे दिल को किसी तौर पर चैन नहीं आ रहा था। मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस गई थी। अचानक ही कुछ बच्चे और औरतें मेरे इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए
और आदम बू के नारे लगाने लगे। उन अजीबो गरीब और खौफनाक शक्ल के लोगों को देखकर मेरे दिल की हालत बहुत अजीब हो रही थी। शहजादा मुकर्रब मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और फिर ना जाने कौन सी जुबान में उन्हें कुछ कहने लगा। वो जुबान मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन इस बात का अंदाजा हो गया था कि शहजादे के कहने पर लोग मुझसे दूर हो गए, लेकिन अब भी मुझे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे। मैंने अपने कबीले के तमाम लोगों को दरबार में जमा होने का हुक्म दे दिया था। मैं अपने मेहमान की हैसियत से तुम्हारा तारुफ करवा दूंगा, फिर कोई भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, बल्कि सब तुम्हें अपना मेहमान समझते हुए ख्याल करेंगे। मेरी खौफजदा हालत को देखते हुए शहजादा मुकर्रब ने जल्दी से कहा। मेरा सर चकरा रहा था, जमीन और आसमान घूमते हुए महसूस हो रहे थे। करीब था कि मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती। अचानक ही मेरे सामने एक कुर्सी आ गई और लड़खड़ाते हुए मैं उस पर जा बैठी। मैं जब तुमसे कह रहा हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, फिर क्यों परेशान हो रही हो? मेरी हालत को देखते हुए शहजादा मुकर्रब ने गुस्से से कहा। उसे शायद इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही। अब तक जो कुछ मेरे साथ हो चुका था, मैं भला कैसे किसी अजनबी पर एतमाद कर सकती थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि शहजादे ने मुझसे कहा कि अब तुम खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ अपने महल में लेकर जा रहा हूँ। मेरे कबीले और इलाके के लोग दरबार में मेरा इंतजार कर रहे हैं। शहजादे मुकर्रब ने कहा और आगे बढ़कर जल्दी से मेरे सर पर हाथ रख दिया। जब मैंने आंखें खोली तो एक बार फिर मंजर बदल चुका था। मैं शहजादे के साथ एक बहुत बड़े तख्त पर खड़ी थी, जिस पर मैं और सिर्फ शहजादा मुकर्रब थे, बल्कि कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल सामने ही बड़ी तादाद में शहजादे की रियाया मौजूद थी, जिन्होंने सर झुकाकर अपने शहजादे का इस्तकबाल किया था। शहजादे ने सबसे पहले आगे बढ़कर बादशाह सलामत को सलाम अर्ज किया और फिर मलिका का हाथ चूमा। अपने वालिदैन की मौजूदगी में मैं आप सबको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ, ये आदमजादी मेरी मेहमान है। ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आप सबकी भी मेहमान है। सब ने इसका बहुत ख्याल रखना है। ये सिर्फ चंद दिनों के लिए ही हमारे पास आई है, बहुत जल्द अपनी दुनिया में वापस लौट जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इस दुनिया से वापस जाए तो बहुत अच्छी यादें लेकर जाए, जो हमेशा उसके जहन में अच्छी याद बनकर महफूज रहे। मजमे की तरफ देखते हुए शहजादे ने ऐलान करते हुए कहा। शहजादे का ऐलान करते ही सारा मजमा हाथ हिला हिला कर न जाने क्या कहने लगा। उनकी कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो सब शहजादे के साथ खड़े हैं। उन्हें शहजादे की इस बात पर कोई एतराज नहीं है। शहजादे ने बादशाह और मलिका से मेरा तारुफ करवाया। वो भी बहुत खुशी से मुझे मिले। एक बात मैं बहुत देर से देख रही थी कि यहाँ पर सबकी शक्लें बहुत अजीब और गरीब और खौफनाक थीं, लेकिन शहजादा मुकर्रब तो इंसानी शक्ल में और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। दरबार खत्म करने के बाद शहजादा मुझे अपने महल में ले आया। ऐसा महल तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। शहजादे के बहुत सारे बहन भाई थे, जो सभी हम शक्ल और मेहमान नवाज थे। मैंने जिन्नात के बारे में यही सुना था कि बहुत गुस्से वाले और ताकतवर होते हैं, यहाँ तक कि बहुत शर पसंद भी होते हैं। मेरे ख्यालात सुनने के बाद मलिका हंसने लगी और मुझे हंसते हुए कहा कि इंसानों की तरह जिन्नात में भी अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। नेक और मोमिन जिन्नात अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं और शैतान के हथकंडों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्कुल इंसानों की तरह ही कुछ जिन्नात भी राह रास्त से भटक जाती हैं, जो कि इंसानों को तंग करने का बायस बनते हैं। लेकिन सिर्फ चंद शैतानों की वजह से हमारे बारे में ऐसा मशहूर हो चुका है। मलिका ने मुझे समझाया तो मैं उनकी बात सुनकर कुछ शर्मिंदा हो गई थी। बहुत रोज गुजर चुके थे। मैं यहाँ पर अपने आप को बहुत अजनबी महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने शहजादे से यहाँ से वापस जाने की इजाज़त चाही, जिस पर शहजादे ने मेरे साथ अपनी 2 ताकतवर ख़वातीन मुलाज़मा को भेजा। शहजादे ने मुझसे कहा था कि ये दोनों तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेंगे, जब तक तुम चाहोगी तुम्हारे साथ रहेंगे। इसे हमारी तरफ से तोहफा समझ लेना, उनके जरिए तुम अपने दुश्मनों पर काबू पा लोगी। मेरे लिए शहजादे का ये तोहफा बहुत कीमती था। उन दोनों के साथ मैं अपनी हवेली में आ गई। दोपहर का वक्त था। चचा और चची तो घर पर मौजूद थे,
लेकिन अदनान और उसामा इस वक्त घर पर नहीं थे। अचानक से मुझे हवेली में देखकर चचा और चची परेशान हो गए और हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। मैं उन्हें तन्हा दिखाई दे रही थी। मेरे साथ शहजादे की ताकतवर मुलाजमाएं उन्हें दिखाई नहीं दे रही थीं, क्योंकि जिन्नात को देख लेना इंसानी आंख के लिए मुमकिन नहीं है। जब तक जिन्नात खुद ना चाहें, वो इंसानों को दिखाई नहीं देते। इसलिए वो दोनों भी मुझे तन्हा समझ रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम हवेली में वापस आ गई? हमारी इज्जत का जिनासा निकालने के बाद तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें इस घर में जगह मिल सकती है? मुझे देखते ही चचा गुस्से से कहने लगे। चची भी खूनख्वार निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। आप कौन होते हैं मुझसे ये पूछने वाले कि मैं क्यों आई हूँ? जब आपके घर और आपकी चारदीवारी में मैं महफूज नहीं थी, तब आप कहाँ थे? चचा के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए मैंने इंतहाई तंजिया लहजे से पूछा। मेरी बात सुनकर चची कुछ घबरा गई थी। ये बकवास कर रही है। अपने जिस आशिक के साथ भाग कर गई थी, इसने उसे घर से निकाल दिया होगा, इसलिए वापस आ गई है। और मुझे लगता है इसका दिमाग भी खराब हो चुका है, उल्टी सीधी बातें कर रही है। हाथ में नचाते हुए गुस्से से चची ने कहा, ना ही मेरा दिमाग खराब हुआ है और ना ही मैं किसी के साथ भाग कर गई थी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे यहाँ से किसने भागने पर मजबूर किया था। चची की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए मैंने कहा, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। हर शख्स हमें कमजोर, मजबूर और बेबस समझ रहा है। यहाँ वापस आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को भी अपनी इज्जत के साथ खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। चचा ने गुस्से से कहते हुए मेरी तरफ कदम बढ़ाए और फिर जल्दी से मुझे गर्दन से दबोच लिया। वो शायद मुझे जान से मार देना चाहते थे। मेरी हिफाजत पर मामूर दोनों ताकतवर जिन्नात औरतों ने एक ही झटके में चचा को दूर फेंक दिया। हैरत से चचा और चची मेरी तरफ देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इस कदर ताकतवर हो सकती हूँ। उनकी हैरत पर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। मुझ पर हमला करने से पहले या मेरे खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले एक बात जहन में बिठा लीजिएगा कि अब मैं किसी को माफ नहीं करने वाली। मेरे बाप की जमीन और हवेली जिस पर आपने कब्जा किया हुआ है, वो आराम से मेरे हवाले कर दीजिएगा, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। चचा और चची को धमकी देते हुए मैं अपने हिस्से की तरफ आ गई, जिस पर उसामा और अदनान ने कब्जा किया हुआ था। मुलाजमीन को मैंने हवेली की सफाई का कहा और आराम करने लगी। दिल ही दिल में मैं शहजादा मुकर्रब की शुक्रगुजार हो रही थी, जिन्होंने मुझे इस कदर हौसला अता किया था। अगर वो अपनी बहादुर मुलाजमाओं को मेरे साथ ना भेजती तो मैं किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अदनान दंदनाता हुआ दाखिल हुआ। इससे पहले कि वो करीब आता, किसी अनदेखी कुव्वत ने उसे उठाकर जोर से पटक दिया था। तुम मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर कैसे दाखिल हुए? गेट पर खड़े हो जाओ और मुझसे इजाजत तलब करो। अगर मैं तुम्हें अपने घर के अंदर आने की इजाजत दूं, तभी तुम अंदर आ सकते हो, मैंने इंतहाई गुस्से से कहा। मेरी बात सुनकर तो अदनान गुस्से से पागल होने लगा। अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर मुझ पर तान ली। वो मुझ पर गोली चलाने लगा, लेकिन उस वक्त तो उसकी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं, जब उसके हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल से बारूद भरी गोली के बजाय पानी निकलने लगा। ये सब मंजर देखकर मुलाजिम तो हंसने लगे। अदनान को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैंने उसे साफ अल्फाज में बता दिया था कि अगर उसने मुझे तंग करने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा, लेकिन शायद उसे मेरी बात समझ नहीं आई थी। इसलिए जब मैं रात को आराम कर रही थी तो मुझे जान से मार देने की गर्ज से वो एक बार फिर मेरे घर में दाखिल हुआ। इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, मेरे दोनों ताकतवर साथियों ने उसे जमीन से उठाया और उड़ते हुए छत पर ले गई और फिर जोरदार धक्का देकर उसे जमीन पर नीचे फेंक दिया। उसकी चीखों की आवाजें सुनकर सब जमा हो गए थे। छत से नीचे गिरने की वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हुआ था और उसकी बहुत सी हड्डियां भी टूट चुकी थीं। उसकी हालत देखकर चच्ची तो मुझे बद्दुआएं देने लगी। जल्द ही ये खबर पूरे इलाके में फैल गई थी कि मैं घर वापस आ गई हूँ और अब डट कर मुकाबला कर रही हूँ। लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी कि न जाने मैं काला इल्म सीख कर आई हूँ, जिसके जरिए मैं अब अपने दुश्मनों से बदला ले रही हूँ। लेकिन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी
میں تو صرف اپنا حق واپس لینا چاہتی تھی۔ عدنان کا انجام دیکھ کر مجھے دلی سکون محسوس ہوتا تھا۔ اس نے مجھے بہت بے سکون کیا تھا۔ اب معذور اور مجبور انسان کی طرح بستر پر پڑا رہتا۔ ہر وقت چچی اس کی خدمت میں لگی ہوتی اور مجھے بد دعائیں دیتی رہتی، لیکن اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے چچا سے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے میرے باپ کی زمین کے کاغذات میرے حوالے نہ کیے تو ان کے کسی بھی نقصان کے ذمہ دار میں نہیں ہوں گی۔ جب میں نے چچا کو چچی اور عدنان کی حرکتوں کے بارے میں بتایا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے تھے، مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے گھر میں ہی تم غیر محفوظ ہوگی، تم میری بیٹی ہو، لیکن اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی کہ عدنان تمہیں ہراساں کرتا ہے تو میں اس کا کوئی بندوبست کرتا، لیکن تم نے مجھے بتانے میں دیر کر دی۔ چچا نے شرمندہ لہجے سے کہا، اتنا تو مجھے بھی علم تھا کہ زمین جائیداد سے چچا کو بہت پیار ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس قدر نہیں گر سکتے کہ اپنی ہی اولاد کو ذلیل و رسوا کر سکیں۔ میں نے چچا کو تو معاف کر دیا تھا، لیکن چچی اور عدنان کو کبھی معاف نہ کر سکی۔ میں نے چچا سے تمام پراپرٹی کے کاغذات واپس لے لیے۔ شہزادہ مقرب کے کہنے پر ہی میں نے دوسرے گاؤں کے چودھری صاحب کے بیٹے صفدر چودھری، جو کہ میرا ہی ہم عمر تھا، شادی کر لی تھی۔ میری زندگی جو ابا کے مرنے کے بعد بہت بے سکون ہو چکی تھی، اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ میری زندگی میں سکون ہی سکون تھا، کیونکہ صفدر چودھری ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ ایک لڑکی کے ہاتھوں اپنی ٹانگیں اور بازو توڑوانے کے بعد عدنان میں پہلے جیسا دم خم نہیں رہا تھا۔ اب علاقے میں کچھ سکون آ چکا تھا، کیونکہ وارث چچا اپنے جن بیٹوں کے بلبوتے پر انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے، وہ تو خود بھی بہت بزدل اور کمزور تھے۔ وقت اور حالات نے سب کچھ بدل دیا تھا، اور یہ سب کچھ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھی، پرانے واقعات کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خود کو اپنے شوہر کی زندگی میں مصروف کر لیا۔ میرے لیے سب کچھ صفدر چودھری ہی تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی جس نے میرے لیے بہترین شریک حیات کا انتخاب کیا تھا۔ میں اپنی ہر نماز کے بعد شہزادہ مقرب کے لیے زندگی میں خوش و خرم رہنے کی دعائیں بھی مانگتی تھی۔ وہ میرا محسن تھا، اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتا تو نہ جانے میں کہاں دھکے کھا رہی ہوتی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔